meditation, let us turn to the book of Job, chapter 2, verse 10. आइए हम आज सुबह के अपने मनन के लिए पढ़ेंगे अय्यूब की पुस्तक 2 अध्याय 10 वचन। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री से बातें करती है, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। But he said unto her, Thou speakest as one of the foolish women speaketh. What? Shall we receive good at the hand of God, and shall we not receive evil? In all this did not Job sin with his lips. Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की स्तुति This हो। is a confession of Job. ये अय्यूब का इकरार है। We are receiving the goodness from the hands of the Lord. हमने परमेश्वर से भली बातों को प्राप्त किया है And also we are enjoying the evil also from the hands of the Lord. और हम परमेश्वर के हाथों से दुख भी प्राप्त करते हैं। Dear child of God, in this morning our meditation is about the hands of the Lord. परमेश्वर के प्रिय बच्चों, आज सुबह का हमारा मनन परमेश्वर के हाथ के बारे में है। The Old Testament saints' confession is the good and evil comes from the hands of the Lord. पुराने नियम के संत का इकरार है कि सब सुख दुख परमेश्वर की ओर से आते हैं। But the New Testament saints, the New Testament people, they will tell everything works good for the people of God by the hands of the Lord. लेकिन नए नियम के संत कहते हैं कि सब परमेश्वर के लोगों के लिए जो उससे प्रेम करते हैं उसके हाथ से उनके लिए सब कुछ भलाई ही को उत्पन्न करता है। Dear child of God, our Lord is a good God. He is a loving God. He does everything good in our life. परमेश्वर के प्रिय बच्चों, हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है, हमारा प्रेमी परमेश्वर है। वो हमारे लिए सब कुछ भलाई के लिए करता है। He is having a great concern about each and everybody. वो उसका हमारे प्रत्येक के साथ एक विशेष संबंध है। Dear child of God, even today He wants to give all the blessings in our life. परमेश्वर के प्रिय बच्चों, यहाँ तक कि आज सुबह के समय भी वो हमारे प्रत्येक के जीवन में आशीष देना चाहता है। If we love Him, if we trust Him, He will give all the blessings in our life. अगर हम उसे प्रेम करेंगे, उस पर भरोसा रखेंगे, तो वो अपनी सब आशीषें हमें देगा। Dear child of God, every good thing comes from the hands of the Lord. परमेश्वर के प्रिय बच्चों, प्रत्येक भली बात परमेश्वर के हाथ से आती है। He is an almighty God. वो सर्वशक्तिमान He is परमेश्वर a है, loving God. वो प्रेमी परमेश्वर He is है, a God of all blessings. वो सब आशीषों का स्रोत परमेश्वर है। That God wants to give all His blessings in our life. वो परमेश्वर हमारे जीवन में सब आशीषें देना चाहता है। When we go through the Word of God, we can see जब हम परमेश्वर के वचन में से देखते हैं तो हम देख सकते हैं this loving God, by His loving hands, He created man out of the dust. ये प्रेमी परमेश्वर ने अपने प्रेमी हाथ से धूल से मिट्टी से इस मनुष्य की सृष्टि की। In His own image, in His own likeness, He created that man. उसने मनुष्य को अपनी शक्ल और अपने स्वरूप में सृष्टि किया, He lost that privilege. He gone away from the Lord. लेकिन उसने उस सौभाग्यता को खो दिया और वो उससे दूर चला गया। But He had a great plan to dwell with this man. लेकिन उसका इस मनुष्य के साथ वास करने के लिए महान योजना थी। That's why day by day, by ages, He is working with this mankind so that they become worthy to dwell with Him. इसलिए दिन प्रतिदिन युगानुयुग परमेश्वर उसके साथ व्यवहार करता आ रहा है कि ताकि वो उसके साथ वास कर सके। By His hands, in His so many ways, in His so many times, Lord is dealing with this man so that he become worthy to dwell with Him. वो अपने हाथ के द्वारा और अपने कामों के द्वारा विभिन्न तरीकों से मनुष्य के साथ व्यवहार करता है ताकि वो उसके साथ वास करने के योग्य बन सके। So He was created out of mud. He want to change him, transform him as He is glory. वो बेशक मिट्टी से सृष्टि किया गया था, लेकिन वो उसे महिमा के स्वरूप में बदलना चाहता है। Even today, for this purpose only, Lord brought us in this convention. यहाँ तक कि आज भी इसी मकसद के लिए परमेश्वर में इस सम्मेलन में लेकर आया है। When we go through the Word of God, we can see there are so many blessings coming out of the hands of the Lord. जब हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान करते हैं तो हम देख सकते हैं कि बहुत सी आशीषें परमेश्वर के हाथ से आती हैं। When we go through the Word of God, we can understand Lord is working by His hands in each and everybody's life. जब हम परमेश्वर के हाथ पर ध्यान करते हैं तो परमेश्वर का हाथ हम प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कार्य करता है। That is not an ordinary hand. वो कोई साधारण हाथ It नहीं, is an extraordinary hand. It is a powerful hand. It can do everything in our life. ये असाधारण हाथ है, ये सामर्थ्य हाथ है, ये हमारे जीवन में सब कुछ कर सकता है। Dear child of God, what are the blessings coming out of the hand? In this morning, we can meditate through the Word of God. आज सुबह के समय परमेश्वर
परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के हाथ से कौन कौन सी आशीषें आती हैं, हम इसके ऊपर ध्यान करेंगे। If you understand all these blessings, it will be very useful in our life. अगर हम इन सब आशीषों के बारे में समझ लेंगे तो ये हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक होंगी। If you understand all these things, you will be rejoicing in the hands of the Lord. अगर आप इन सब बातों को समझ लेंगे तो आप परमेश्वर के हाथ में मगन होंगे, आनंदित होंगे। Dear child of God, if you understand all these things, you will be safe in the hands of the Lord. परमेश्वर के प्रिय बच्चों, अगर आप इन सब बातों को समझ लेंगे तो आप परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित होंगे। Some people, they are full of cares, full of burdens, full of so many things. और कुछ परमेश्वर के बच्चे बहुत सी बोझ और चिंताओं के नीचे दबे रहते हैं, Because they don't know about the knowledge or wisdom concerning the hands of the Lord. क्योंकि उन्हें परमेश्वर के हाथ के प्रति ज्ञान और समझ नहीं है। But you and I, called by the Lord, separated by the Lord, we are safe in the hands of the Lord. लेकिन आप और मैं परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं, अलग किए गए हैं और हम उसके हाथ में सुरक्षित हैं। The hands of the Lord is working in our life. That's why we are very happy. We are safe in the presence of God. क्योंकि अभी तक परमेश्वर का हाथ हमारे जीवन में कार्य करता रहा, इसीलिए अभी तक हम परमेश्वर के सम्मुख में हैं। When we look into the past of our life, we can understand how the Lord's hand worked in our life. जब हम अपने जीवन के अतीत को देखते हैं तो हम जान सकते हैं कि कैसे परमेश्वर का हाथ हमारे जीवन में कार्य करता रहा। In our individual life, in our family, in our church, in our every part of our life, we can see the unseen hand of the Lord is working. हम अपने व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, कलीसिया के जीवन में, सामाजिक जीवन में देख सकते हैं कि परमेश्वर का अदृश्य हाथ हमारे जीवन में कार्य करता रहा। Child of God, step by step, gradually, that hand is working in our life. परमेश्वर के प्रिय बच्चों, कदम कदम करके धीरे धीरे परमेश्वर का हाथ हमारे जीवन में कार्य करता रहा। If we trust in that hand, if we surrender our lives to that hand will do that great work in our life. अगर हम उस हाथ पर भरोसा रखेंगे, उस हाथ में अपना जीवन समर्पित करेंगे तो वो हाथ हमारे जीवन में महान कार्य करेगा। Even in this convention also, that unseen hand is working for us. यहाँ तक कि इस सम्मेलन में भी उसका अदृश्य हाथ हमारे लिए कार्य कर रहा है। In every meeting, in every prayer, in every part of this convention, that Lord's hand is working. प्रत्येक मीटिंग में, प्रत्येक प्रार्थना में और इस सम्मेलन के प्रत्येक भाग में परमेश्वर का हाथ कार्य कर रहा है। We can't see by our naked eye, but we can experience that powerful hand in our life. हम इन खुली हुई आंखों से तो नहीं देख सकते, लेकिन हम परमेश्वर के अदृश्य हाथ को कार्य करते हुए महसूस कर सकते हैं। If you believe, if you trust, if you have faith, you can see the work of the hand in your life. अगर आप विश्वास करते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं, तो आप अपने जीवन में परमेश्वर के हाथ के कार्य को देख सकते हैं। Dear child of God, in this morning, let us once again surrender our life to the powerful hands of the Lord. इसलिए आज सुबह के समय आइए परमेश्वर के प्रिय बच्चे, हम अपने जीवन को परमेश्वर के प्रिय हाथ में, सामर्थ्य हाथ में समर्पित करेंगे। What are the blessings we receive from the hand of God? परमेश्वर के हाथ से हमने जो भी आशीषें प्राप्त की हैं, What are the experience we receive from the hands of the Lord? परमेश्वर के हाथ से हमने जो भी अनुभव प्राप्त किए हैं, First of all, we see the deliverance comes from the hands of the Lord. सबसे पहले हम देखते हैं कि छुटकारा परमेश्वर के हाथ से आता In है। other words, we can say the salvation comes from the hands of the Lord. और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उद्धार परमेश्वर के हाथ से आता है। Dear child of God, Lord works in our life by His hand to bring salvation, to bring deliverance in our life. परमेश्वर के प्रिय बच्चों, परमेश्वर अपने हाथ के द्वारा हमारे जीवन में उद्धार और छुटकारा और आशीष लाने के लिए कार्य करता In है। the book of Exodus, chapter 3, verse 19 and 20, we read about that. निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय 29 और 20 वचन में हम देख सकते The हैं। people of Israelites were suffering under the bondage of that Pharaoh. और जब इस्राएल लोग फिरौन की बंधुआई में पड़े थे, They're suffering under the taskmasters. वो बेगार करवाने वालों के हाथ से दुख उठा रहे थे Because of the sufferings, they cried unto the Lord. और उन्होंने उन दुखों की वजह से परमेश्वर की दुहाई दी। For that, Lord stretched forth His hand. He brought the deliverance in the life of the people of Israelites. और इस वजह से परमेश्वर ने अपने पराक्रमी हाथ को बढ़ाया और इस्राएलियों के जीवन में एक बहुत बड़ा छुटकारा लेकर आया। Read that verse. कृपया वो वचन पढ़ेंगे, 19 और 20 वचन। मैं जानता हूँ कि मिस्र का राजा तुमको जाने ना देगा, वरन बड़े दल से दबाए जाने पर भी जाने ना देगा। इसलिए मैं हाथ बढ़ाकर उन सब आश्चर्य कर्मों से जो मिस्र के बीच करूंगा, उस देश को मारूंगा और उसके पश्चात
वह तुमको जाने देगा। Lord stretched forth his mighty hand. He done so many miracles and wonders. He brought deliverance in the life of the people of Israelites. परमेश्वर ने अपने पराक्रमी हाथ को बढ़ाया और परमेश्वर ने इस्राएली बच्चों के जीवन में बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी कार्य किए। The day by day, the Pharaoh and his taskmaster, they want to oppress the children of God. दिन प्रतिदिन फिरौन और बेगार करवाने वाले इस्राएली बच्चों को दबाना चाहते थे। They were in great distress. वो बहुत बड़े संकट में थे। They want to get deliverance. वो छुटकारा प्राप्त करना चाहते थे। They want to get the salvation. वो उद्धार प्राप्त करना चाहते थे। They want to come out of bondage. वो बंधुआई से बाहर आना चाहते थे, But they could not. लेकिन वो आ नहीं सकते थे। So they cried unto the Lord for the deliverance. इसलिए उन्होंने छुटकारे के लिए परमेश्वर की दुहाई दी। Lord, seeing the humble state of the children of God, परमेश्वर ने इस्राएली बच्चों की दुर्दशा को देखा। Lord heard the cry. परमेश्वर ने उनकी दुहाई को सुना। He stretched forth his hand. He done so many miracles and wonders in the Egypt. उसने अपने पराक्रमी हाथ को बढ़ाया और मिस्र में बहुत बड़े अद्भुत और आश्चर्य कर्म किए। By seeing the wonders and miracles of that in Egypt, मिस्र में अद्भुत और आश्चर्य कर्मों को देख करके the magician said, "This is the finger of the Lord." और जादूगरों ने कहा कि ये परमेश्वर की उंगली है। The book of Exodus, chapter 8, verse 19, we read about that. निर्गमन की पुस्तक 8 अध्याय उसके 19 वचन में हम ये देखते हैं। This is the finger of the Lord. ये परमेश्वर के हाथ की उंगली है। It is the power of the Lord. ये परमेश्वर की सामर्थ्य है। It is the hand of the Lord. मतलब ये परमेश्वर का हाथ है। Read the verse. कृपया वो वचन पढ़ेंगे। तब जादूगरों ने फिरौन से कहा, ये तो परमेश्वर के हाथ का काम है। तो भी यहोवा के कहने के अनुसार फिरौन का मन कठोर होता गया और उसने मूसा और हारून की बात ना मानी। Then the magician said unto Pharaoh, This is the finger of God. And Pharaoh's heart was hardened, and he hearkened not unto them as the Lord had said. This is the finger of the Lord. ये परमेश्वर के हाथ की उंगली They है। say, by the hand of God, by the finger of the Lord, the children of Israel will get deliverance. परमेश्वर के प्रिय बच्चों, परमेश्वर के हाथ के द्वारा, परमेश्वर के हाथ की उंगली के द्वारा इस्राएली बच्चों ने छुटकारा The प्राप्त किया। same manner, Lord wants to give deliverance in our life. और उसी प्रकार परमेश्वर हमारे जीवन में भी छुटकारा देना चाहता है। In the same manner, Lord wants to give salvation in our life. और उसी प्रकार परमेश्वर हमारे जीवन में उद्धार देना चाहता है। You may be suffering with so many problems in your life. आप अपने जीवन में विभिन्न समस्याओं से कष्ट उठा रहे होंगे। You may be suffering. You may be striving for the deliverance in your life. आप दुख उठा रहे होंगे। आप अपने जीवन में छुटकारे के लिए कशमकश कर रहे होंगे। You want to come out evil characters, but you could not. आप बुरे स्वभावों से बाहर आना चाहते होंगे, लेकिन आप आ नहीं सकते। You want to come out from so many evil sins, but you could not. आप बहुत बुरे पापों से बाहर आना चाहते होंगे, लेकिन आप आ नहीं सकते। You want to come out a bad companion, but you could not. आप बुरी संगत से बाहर आना चाहते होंगे, लेकिन आप आ नहीं सकते। You are trying your best, but you are failing more and more. आप उसे हासिल करने के लिए पूरी कोशिश करते होंगे। Today, in this morning, look unto the hand of the Lord. आज सुबह के समय परमेश्वर के हाथ की ओर देखें। That hand is ready to give deliverance in your life. वो हाथ आपके जीवन में छुटकारा देने के लिए तैयार है। Whatever the bondage, Lord is able to give deliverance in your life. कोई भी बंधुआई क्यों ना हो, परमेश्वर आपको छुटकारा देने के लिए तैयार है। God wants to give salvation in your life. परमेश्वर आपके जीवन में उद्धार देना चाहता है। In Calvary we see सलीब पर हम देखते हैं Lord finished every work परमेश्वर ने सब काम पूरा किया for your salvation, आपके उद्धार के for लिए, your deliverance, आपके छुटकारे के लिए, for your salvation. He finished everything in Calvary. आपके उद्धार के लिए उसने कलवरी क्रूस पर सारा काम पूरा किया। Now he is spreading that loving hands. He calling unto him. अभी वो अपना प्रेमी हाथ बढ़ाकर आपको बुला रहा है। Dear child of God, by faith you catch that hand, get deliverance in your life. परमेश्वर के प्रिय बच्चों, विश्वास के साथ आप उसके हाथ की ओर आए और छुटकारा प्राप्त करें। Believe in the word of God. परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें। Believe in the truth of God. परमेश्वर की सच्चाई पर विश्वास करें। Believe in the gospel of God. परमेश्वर के सुसमाचार पर विश्वास करें। You will get that great deliverance in your life. आप अपने जीवन में महान छुटकारा प्राप्त करेंगे। Dear child of God, this is the good time you get deliverance in your life. परमेश्वर के प्रिय बच्चों, अपने जीवन में छुटकारा प्राप्त करने के लिए ये अच्छा समय You है। may be crying for the great deliverance, the depth of the heart. आप अपने दिल की गहराई से छुटकारा प्राप्त करने के लिए परमेश्वर की
दुहाई देते होंगे। Every day you are crying for the deliverance in your life. प्रतिदिन आप अपने जीवन में छुटकारे के लिए दुहाई देते होंगे। Lord has seen your suffering. He wants to give deliverance in your life. परमेश्वर ने आपके दुखों को देख लिया, वो आपके जीवन में छुटकारा देना चाहता Well, है। this morning, look into that hand and receive the deliverance in your life. आज सुबह के समय उस हाथ की ओर निहारें और अपने जीवन में छुटकारा प्राप्त करें। Even today, Lord can give that salvation in your life. यहाँ तक कि आज भी परमेश्वर आपके जीवन में उद्धार दे सकता है। In Psalm 60 verse 5 we see, भजन संहिता 60 और उसके 5वें वचन में हम देखते the हैं, time has come for your deliverance. आपके छुटकारे का समय आ गया। The time has come to answer for all your prayers. आपकी सब प्रार्थनाओं का उत्तर देने का समय आ गया है। This is a time for your deliverance. ये आपके छुटकारे का समय है। In this morning, receive the deliverance from the hands of the Lord. आज सुबह के समय परमेश्वर के हाथ से छुटकारा प्राप्त करें। Read that verse. कृपया वो वचन पढ़ेंगे। तू अपने दाहिने हाथ से बचा और हमारी सुन ले कि तेरे प्रिय छुड़ाए जाएं। That thy beloved may be delivered, save with thy right hand and hear me. Dear child of God, Lord heard your prayers. He wants to give the deliverance in your life. परमेश्वर के प्रिय बच्चों, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुन लिया है और वो आपके जीवन में छुटकारा देना चाहता है। Simply look into that hand of the Lord and receive that deliverance in your life. साधारण रूप से आप परमेश्वर के हाथ को निहारें और अपने जीवन में छुटकारा प्राप्त करें। Whatever your bindings it might be, ये कोई भी बंधुआई क्यों ना हो, Lord will give a great deliverance in your life. परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़ा छुटकारा देगा। If you surrender to the hands of the Lord, you get deliverance in your life. अगर आप अपने आप को परमेश्वर के हाथ के लिए समर्पित करेंगे तो आप अपने जीवन में छुटकारा प्राप्त करेंगे। Next we see that healing comes from the hands of the Lord. और आगे हम देखते हैं कि चंगाई परमेश्वर के हाथ से आती है। Mark chapter 8 verse 25 we see, मार्कुस का सुसमाचार 8वां अध्याय 25 वचन में हम देखते हैं, Lord touched that man, he restored the blind his sight. परमेश्वर ने उस व्यक्ति को स्पर्श किया और उसकी दृष्टि उसे लौटा दी। Lord touched the sick people, he healed them. परमेश्वर ने बीमारों को छुआ और उन्हें चंगा किया। Lord touched the leper, he became clean. परमेश्वर ने कोढ़ी को स्पर्श किया और वह शुद्ध हो गया। In the same manner, there is a healing in the hands of the Lord. इसी प्रकार परमेश्वर के हाथ में चंगाई भी है। That hand wounded for us वो हाथ हमारे लिए घायल किया गया because of our transgressions, हमारे अपराधों की वजह से, because of our wickedness. हमारी दुष्टता की वजह से He was wounded. वो घायल किया गया। By his stripes we were healed. उसके कोड़ों की मार से हम चंगे हो गए। This morning, if you believe, you get healing in your life. आज सुबह के समय अगर आप विश्वास करेंगे तो आप अपने जीवन में चंगाई प्राप्त Dear child of करेंगे। God, the healing comes from the hands of the Lord. परमेश्वर के प्रिय बच्चों, चंगाई परमेश्वर के हाथ से आती है। You may thinking, oh, every time this Pentecost people, they are preaching about the healing, they are preaching about the salvation. आप सोचते होंगे कि ये पेंटिकॉस्टल के लोग हमेशा उद्धार के बारे में, चंगाई के बारे में प्रचार करते हैं। Yes, we had this experience. हाँ, हमारे पास ऐसा अनुभव है। Yes, we had this healing in our life. हमने अपने जीवन में ये चंगाई प्राप्त की। Our Lord healed us from all kind of sicknesses. हमारे प्रभु ने हमें सब प्रकार की बीमारियों से चंगा किया। That's why we want to share this experience with you. इसीलिए हम अपना ये अनुभव आपके साथ साझा करना चाहते The हैं। blessings which we had, we want to give to you. आशीषें हम जो प्राप्त कर चुके हैं वो आपको भी देना चाहते हैं। This morning also we heard wonderful testimonies in our midst. आज सुबह के समय भी हम हमारे बीच में अद्भुत साक्षियों को देखा। We have no sufficient time to tell all these things. हमारे पास ये सब बातें बताने के लिए काफी समय नहीं, Each one of us, we have this experience of the divine healing. लेकिन हम में से प्रत्येक जन के पास ये ईश्वरीय चंगाई का अनुभव है। The child of God, in this morning, look into that hand. परमेश्वर के प्रिय बच्चों, आज सुबह के समय परमेश्वर के हाथ की ओर देखें। That hand can heal you from all your sicknesses. वो हाथ आपको आपकी सब बीमारियों से चंगा कर सकता है। Whatever the sicknesses it might be, you trust in the hand of the Lord. You get healing in your life. कोई भी बीमारी क्यों ना हो, आप परमेश्वर के हाथ पर भरोसा रखें और अपने जीवन में चंगाई प्राप्त He करें। can heal every part of your life. वो आपके जीवन के प्रत्येक भाग को चंगा कर सकता He है। can heal your spirit. वो आपके आत्मा को चंगा कर He सकता can है। heal your hearts. वो आपके हृदय को चंगा कर He सकता है। can heal your soul. वो आपके प्राण को चंगा कर He सकता can है। heal your body. वो आपके शरीर को चंगा कर He सकता can है। heal you from your backsliding state. वो आपके पीछे हटी हुई अवस्था से आपको चंगा कर He सकता can है। heal each and every part of your life. वो आपके जीवन के प्रत्येक भाग को चंगा कर सकता है। Dear child of God, if you surrender to the hand of the Lord, you can get this healing in your life. परमेश्वर के प्रिय बच्चों, अगर आप अपने आप को परमेश्वर के हाथ के लिए समर्पित करेंगे तो आप इस चंगाई को प्राप्त कर सकते हैं। Next thing, Lord wants to give comfort through this hand. और आज सुबह के समय परमेश्वर अपने हाथ के द्वारा आपको दिलासा देना चाहता है। Next thing we see, Lord is embracing us. He is giving comfort in our life. और अगली बात हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें आलिंगन करके अपना दिलासा देना चाहता है। In the book of Songs of Solomon,
chapter 2, verse 6, we read about that. श्रेष्ठ गीत 2 अध्याय 6 वचन में हम ये देखते हैं, By the right hand, he is embracing us. वो अपने दाहिने हाथ से हमें आलिंगन करता By the है left hand, he is lifting our head. और बाएं हाथ से वो हमारा हाथ ऊपर उठाता है। What is embracing shows? परमेश्वर में What is the embracing shows? और ये आलिंगन करना क्या है, इस क्या जिसको दिखाता है? ये किस बात को दर्शाता It है? speaks about the bond of love. ये एक प्रेम के बंधन को दर्शाता It है, speaks about the comfort. ये एक दिलासे को दर्शाता है, It speaks about the rest. ये एक विश्राम को दर्शाता है। Read the verse. कृपया वो वचन पढ़ेंगे। खास उसका बायां हाथ मेरे सिर के नीचे होता और उसके दाहिने हाथ से वह मेरा आलिंगन करता। His left hand is under my head, and his right hand doth embrace me. We see in some occasion, special occasion, people are embracing others. कुछ अवसरों पर हम देखते हैं कि लोग एक दूसरे को आलिंगन करते हैं, Especially in the Punjab, we see. विशेष तौर पर हम पंजाब में देखते हैं। Even during the convention also, they will embrace each other. यहाँ तक के सम्मेलन के समय में भी वो एक दूसरे से का आलिंगन करते हैं। पहले मुझे देखने के टाइम ये क्या करते हैं लोग, कन्वेंशन में भी ऐसे काम करते, क्या है ऐसे? पहले मैं जब कन्वेंशन में भी देखता हूँ तो मैं सोचता ये क्या करते हैं, कन्वेंशन के बीच में भी ऐसा करते हैं। But in South India, we not see like that. लेकिन दक्षिण भारत में हम ऐसा नहीं देखते। It speaks about the bond of love. ये प्रेम के बंधन को दर्शाता है, It speaks about the comfort. ये एक दिलासे को दर्शाता It है, speaks about the rest. ये एक विश्राम को दर्शाता है। Dear child of God, we need comfort in our life. परमेश्वर के प्रिय बच्चों, हमें अपने जीवन में दिलासा चाहिए, We need rest in our life. हमें अपने जीवन में विश्राम चाहिए, We need bond of love in our life. हमें अपने जीवन में एक प्रेम का बंधन चाहिए। But in these days, there is no comfort, there is no rest, there is no bond of love. लेकिन इन दिनों में कोई भी दिलासा, विश्राम या प्रेम का बंधन नहीं। Everybody addicted to this technology, क्या बोलते हैं, this computer, laptop and everything. They have no comfort to others, and they don't have to get comfort from others. लेकिन इन दिनों में सब लोग आधुनिक तकनीक के कंप्यूटर और नेट के साथ के आदी हो चुके हैं और उनके पास कोई भी दिलासा, विश्राम और प्रेम का बंधन नहीं For है। an example, we see mother is embracing its child. और उदाहरण के रूप में हम देखते हैं कि माँ जैसे बच्चे को गले से लगाती है। Why? क्यों? To comfort the child. बच्चे को दिलासा देने के लिए। With that embrace, the child is comforted. और उस आलिंगन करने से बच्चे को दिलासा मिलता है। की वो ऐसे रोते थे। वो ऐसे मदर embrace, stop. वो ऐसी ऊंची आवाज से चिल्लाकर रोएगा, लेकिन जब माता उसे गले से लगा लेती है तो वो चुप कर जाता है। Even the death house also, we see they are shouting and ailing and crying when the embrace type of comfort comes. और यहाँ तक कि हम मृत्यु के घर में भी देखते हैं कि लोग जब रोते चिल्लाते हैं, विलाप करते हैं और एक दूसरे को दिलासा देने के लिए आलिंगन करते हैं। Even the brothers, they used to comfort others by embracing each other. और यहाँ तक कि भाई लोग भी एक दूसरे को दिलासा देने के लिए आलिंगन करते हैं। Even the friends, we see they embrace each other to comfort others. और यहाँ तक कि दोस्तों में भी हम देखते हैं कि एक दूसरे को दिलासा देने के लिए आलिंगन करते हैं। But nowadays they have no time to embrace or think about others. लेकिन इन दिनों में आलिंगन करने के लिए, दूसरों के बारे में सोचने के लिए उनके पास समय नहीं। हमेशा कंप्यूटर गेम्स में, क्या केफ में, क्या किसमें दुनिया में रहते हैं, दूसरों को कंफर्ट देने का, लेने का उनके पास टाइम है नहीं। वो कंप्यूटर गेम्स में, कैफेस में, नेट में इधर उधर देखते हैं, उनके पास एक दूसरे को दिलासा देने के लिए समय नहीं। If anybody anything happen to you is about your किस्मत, तुम क्या बोलते हैं, तुम करो, हम क्या आपको कंफर्ट देना, they will tell like that. और वो कहते हैं कि अगर आपके जीवन में कुछ हो गया तो ये आपकी किस्मत है, हम आपको क्या दिलासा दें। भाई लोग भी आपस में, even the brothers, they don't comfort other. हा हो, they will tell like that, they will go. यहाँ तक कि भाई भी एक दूसरे को दिलासा नहीं देते, ऐसे हाँ ही कू करते हैं। Even the friends also, they have no time to comfort others. यहाँ तक कि दोस्तों के पास भी दूसरों को दिलासा देने के लिए समय नहीं। But our Lord is comforting us. लेकिन हमारा प्रभु हमें दिलासा देता Dear है। child of God, in this life, you can get comfort from the hand of the Lord. और आप अपने जीवन में परमेश्वर के हाथ से दिलासा प्राप्त कर सकते हैं। With an eternal love, He is comforting us. वो अपने अनंत प्रेम से हमें दिलासा देता है। With an unchanging love, He is embracing us. वो अपने अटल प्रेम से हमें आलिंगन करता We है। are not worthy for this. हम उसके योग्य नहीं But हैं, our Lord loved us. लेकिन हमारे परमेश्वर ने हमें प्रेम किया। Even today, our Lord's hand is embracing us. यहाँ तक कि आज सुबह के समय भी हमारे परमेश्वर
परमेश्वर का हाथ हमें आलिंगन करता In है। the time of distress, He is impressing us. वो हमारे संकट के समय हमें आलिंगन करता है। In the time of sorrow, He is impressing us. हमारे दुख के समय वो हमें आलिंगन करता In है। the time of our need, He is impressing us. वो हमारी आवश्यकता के समय हमें अपने गले से लगाता है। When we go through so many problems, our Lord is impressing us. जब हम विभिन्न समस्याओं से गुजरते हैं तो वो हमें अपने गले से लगाता When है। we go through sufferings, hardships, our Lord is impressing us. जब हम दुखों से कठिनाइयों से गुजरते हैं तो वो हमें गले से लगाता है। How we can get this comfort? हम कैसे ये दिलासा प्राप्त कर सकते हैं? Philippians 4 chapter verse 6 and 7, we read about that. फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 6 और 7 वचन में With हम the ये prayer देख and सकते हैं। supplication, we have to know everything to the Lord. हमें प्रार्थना और निवेदन के द्वारा सब बातें प्रभु के सामने रखनी The चाहिए। peace of the Lord, the rest of the Lord comes in our heart and mind. परमेश्वर की शांति और उसका विश्राम हमारे हृदय और मन में आएगा। Through prayers, we get this comfort in our life. प्रार्थना के द्वारा हम अपने जीवन में ये दिलासा प्राप्त करते हैं। Some people thinking the Pentecost वालों को और कोई काम नहीं, हमेशा बाइबल लेके भागते किधर भागते, क्या ऐसे? कुछ लोग सोचते हैं कि ये पेंटिकॉस्ट वालों को कोई काम नहीं है, हमेशा बाइबल लेके भागते रहते हैं। कहाँ भागते रहते हैं? फास्टिंग पीरियड, खाना भी नहीं खाता, इसे भागते रहते, किधर जाते? ये हमेशा उपवास प्रार्थना रखते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं, ये कहाँ भागते हैं? Yes, dear brother, sister, where we have to go? We will go to the presence of the Lord. हाँ, परमेश्वर के प्रिय भाई और बहन, हम कहाँ भागना होगा? हम परमेश्वर के सम्मुख में Why भागेंगे। we are going to the presence of the Lord? हम क्यों परमेश्वर के सम्मुख में जाते हैं? We get the comfort from the Lord. क्योंकि हम प्रभु से दिलासा प्राप्त We करते get हैं, the rest from the Lord. हम प्रभु से विश्राम प्राप्त करते Even हैं। today, that hand is impressing you to give comfort in your life. यहाँ तक कि आज सुबह के समय भी वो आपको दिलासा देने के लिए वो हाथ आपको आलिंगन कर रहा So, है। child of God, even today, that hand is impressing you to give rest in your life. परमेश्वर के प्रिय बच्चों, आज के दिन भी परमेश्वर का हाथ आपको विश्राम देने के लिए आलिंगन कर रहा है। Matthew 11 chapter verse 28 is calling you. मत्ती का सुसमाचार 11 अध्याय 28 वचन आपको बुला If रहा you है। come unto Him, you can receive that rest in your life. हे सब थके और बोझे दबे हो, उसके पास आओ, तुम उससे विश्राम पाओगे। Whatever your problems it might be, come unto the Lord. He will give rest in your life. आपकी कोई भी समस्या क्यों ना हो, आप प्रभु के पास आए, वो आपके जीवन में विश्राम देगा। Whatever the hardships, whatever the sufferings you may face, you come unto the Lord. He will give rest in your life. आपको कोई भी कठिनाई या किसी भी समस्या का सामना क्यों ना करते हो, आप प्रभु के पास आए, वो आपके जीवन में विश्राम देगा। No other hand can impress you. कोई और दूसरा हाथ आपको आलिंगन नहीं कर सकता। Every hand will forsake you. प्रत्येक हाथ आपको तज देगा। But Lord says, I will not leave thee, I will not forsake thee. लेकिन परमेश्वर कहता है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। Even till the end of the life, He can give comfort in your life. यहाँ तक कि जगत के अंत तक वो सदैव आपको दिलासा दे सकता Child है। of God, in this morning, get that comfort from the hands of the Lord. परमेश्वर के प्रिय बच्चों, आज सुबह के समय परमेश्वर के हाथ से दिलासा प्राप्त That करें। hand is ready to comfort you. वह हाथ आपको दिलासा देने के लिए That's why तैयार है। Lord brought you in the presence of the Lord. इसलिए परमेश्वर आपको अपने सम्मुख में लेकर आया है। In this morning, by His word, He is comforting you. आज सुबह के समय इस वचन के द्वारा वो आपको दिलासा दे By रहा the है। Spirit of the Lord, He is comforting you. परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा आपको दिलासा दे रहा है। Child of God, by the counsel of the Lord, He is comforting you. परमेश्वर के प्रिय बच्चे, वो अपनी सलाह से आपको दिलासा दे रहा है। This morning, He, by His hand, He is impressing you. He is comforting you. आज सुबह के समय वो अपने हाथ से आपको आलिंगन करके दिलासा दे रहा Child है। of God, you no need to wander here and there. परमेश्वर के प्रिय बच्चों, आपको इधर उधर भटकने की You come आवश्यकता under the नहीं। hands of the Lord, you get that great comfort and rest in your life. आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथ से अपने जीवन में दिलासा और विश्राम प्राप्त करें। This morning, you can receive that comfort and rest in your life. आज सुबह के समय आप अपने जीवन में विश्राम और दिलासा प्राप्त कर सकते हैं। Happily, very joyfully, you can go from this presence of the Lord. आप परमेश्वर के सम्मुख से आनंद और खुशी के साथ जा सकते हैं। Next, this hand is preserving, creating us. और अगला, ये हाथ हमें उत्पन्न करता है। Jeremiah chapter 18 verse 6. यिर्मयाह की पुस्तक 18 अध्याय 6 वचन। The book of Jeremiah chapter 18 verse 6. यिर्मयाह की पुस्तक 18 अध्याय 6 वचन। यहोवा की ये वाणी है कि इस कुमार के नहीं तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता। देख, जैसा मिट्टी कुमार के हाथ में रहती है, वैसे ही है इस्राएल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। Dear child of God, by this hand, Lord is creating us. परमेश्वर के प्रिय बच्चों, परमेश्वर इस हाथ के द्वारा हमें सृष्टि करता है। As the clay in the potter's hand, we are in the hands of the Lord. जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में है, वैसे ही हम परमेश्वर के हाथ में हैं। Our Lord is our creator. He is our maker God. हमारा परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है, वो हमारा परमेश्वर है। In Ephesians chapter 2 verse 10, we are seeing we are the workmanship of the Lord. और इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 10 वचन में हम देख सकते हैं कि हम परमेश्वर के हाथ की
कारीगरी The है। Lord created us. हमारे परमेश्वर ने हमें सृष्टि किया। You can tell because of your knowledge or wisdom you came from somebody something. But the word of God says we are created by the Lord. आप अपने ज्ञान से समझ से कह सकते हैं कि आप किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी दूसरे तरीके से आए होंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि आप परमेश्वर के हाथ के द्वारा सृष्टि किए गए हैं। Science want to prove that man come out of so many things. विज्ञान ये साबित करना चाहता है कि मनुष्य विभिन्न तरीकों से अस्तित्व में आया, At last they invented the God particle. और आखिर में उन्होंने एक गॉड पार्टिकल को, अणु को ढूंढा है। Everything had been created by that God particle. सब प्रत्येक वस्तु वो गॉड पार्टिकल से सृष्टि की गई है। At last it proved that it was created by God particle. और कुछ विज्ञानियों ने ये साबित किया है कि ये गॉड पार्टिकल से They सृष्टि tell किया God, गया the है। Lord created us. परमेश्वर के प्रिय बच्चों, हमारे परमेश्वर ने हमें सृष्टि किया We है। are the workmanship of our God. हम अपने परमेश्वर के हाथ की We are कारीगरी हैं। simply clay in the hands of the Lord. हम साधारण रूप से मिट्टी के समान That परमेश्वर के हाथ में हैं, unseen hand is creating in us. और दृश्य हाथ में सृष्टि करते हैं। Read that verse 2:10. Ephesians. इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 10 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से करने के लिए तैयार किया। For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Lord creating us. परमेश्वर हमें सृष्टि करता है। Spiritual body, if we surrender our life to the Lord, अगर आज सुबह के समय हम अपने शरीर को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करेंगे, if we surrender to the hands of the Lord, अगर हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करेंगे, that loving hand will create us. वो प्रेमी हाथ हमें सृष्टि करेगा, That loving hand will mold us. वो प्रेमी हाथ हमें ढाल देगा। Our life may be out of shape. हमारा जीवन शायद बिना आकार के होगा, Our life may be out of nothing. हमारा जीवन बिना किसी के कुछ भी होगा, Our life is full of failures. हमारा जीवन पराजयों से भरा हुआ होगा। But if we come in the hands of the Lord, He will use it, He will mold us. अगर हम परमेश्वर के हाथ में आएंगे, वो इसे उपयोग करेगा और इसे ढाल देगा। The child of God is a creator God. परमेश्वर के प्रिय बच्चों, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। If we surrender to the Lord, that hand will create in our life. अगर हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सृष्टि करेंगे तो परमेश्वर हमें अपने हाथ में सृष्टि करेगा। In order to create, Lord wants to break us. परमेश्वर हमें सृष्टि करने के लिए हमें तोड़ना चाहता है। He will break our ways. वो हमारे मार्गों को तोड़ He डालेगा, will break our plans. वो हमारी योजनाओं को तोड़ देगा, He will break our plans. वो हमारी योजनाओं को तोड़ देगा, He will break our part into pieces. वो हमारे हिस्सों को टुकड़ा टुकड़ा कर देगा। We may think we may dream so many things in our life. हम अपने जीवन में विभिन्न बातों के सपन लेते होंगे, But in order to create, Lord will break all those things in our life. लेकिन हमें सृष्टि करने के लिए परमेश्वर उन सब बातों को तोड़ देगा। He will break our pride. वो हमारे घमंड को तोड़ेगा, He will break our self. वो हमारी खुदी को तोड़ेगा, He will break our will. वो हमारी इच्छा को तोड़ेगा, He will break totally in our life. वो हमें अपने जीवन में पूरी तरह से तोड़ देगा। Why? क्यों? In order to create, in order to mold our life. हमें सृष्टि करने के लिए, हमारे जीवन को ढालने के लिए। Simply surrender to the hands of the Lord. That hand will create, it will mold our life. साधारण रूप से आप अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें, वो हमें सृष्टि करेगा और हमें ढाल देगा। According to His plan, according to His purpose, that hand will create us. वो परमेश्वर अपनी योजना और अपने मकसद के अनुसार हमें सृष्टि करेगा, And also that hand will sanctify us. और वो हाथ हमें पवित्र भी करेगा। Malachi 3rd chapter, 3rd verse. मालाकी की पुस्तक 3 अध्याय 3 वचन। वो रूपे का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा और लेवियों को शुद्ध करेगा और उनको सोने रूपे की नाई निर्मल करेगा, तब वे यहोवा की भेंट धर्म से चढ़ाएंगे। In order to create, in order to mold us, Lord is doing the sanctification work in our life. परमेश्वर हमें सृष्टि करने के लिए, हमें ढालने के लिए हमारे जीवन में पवित्रताई का काम करता As है। a sanctifier, He is sitting and He is sanctifying us. वो शुद्ध करने वाले के रूप में हमें बैठता है और हमें शुद्ध करता है। That means He is leaving everything behind. He is sitting and doing the work in our life. मतलब वो सब बातों को छोड़ करके बैठ करके हमारे जीवन को पवित्र करता है। If we sit in one place, that means our mind, our purpose, everything aimed to that one work. अगर हम एक जगह पर बैठ जाएंगे तो इसका मतलब कि हमारा हृदय, हमारा मन सब कुछ उसी बात में व्यस्त होगा। सबको पीछे छोड़ के उसी बात में लगे रहते। सब बातों को छोड़ करके उसी बात में लगे रहेंगे। Same manner, Lord will sit in our life. He will do that sanctification work in our life. इसी प्रकार परमेश्वर हमारे जीवन में बैठकर हमारे जीवन में पवित्रताई का कार्य करेगा। To do that creation work, to do that molding work, Lord will sit and He will
will clean us, He will sanctify us. वो सृष्टि करने के काम को के लिए, ढालने के काम के लिए वो बैठकर हमें शुद्ध करेगा और पवित्र करेगा। He will purge us, He will purify us. वो हमें शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा। In this convention also, Lord is doing that great work in our life. और इस सम्मेलन में भी परमेश्वर वो हमारे जीवन में महान कार्य कर रहा है। By sending His word, Lord is sanctifying us. अपने वचन को भेजकर परमेश्वर हमें पवित्र कर रहा है। By sending His truth, our Lord is sanctifying us. परमेश्वर अपनी सच्चाई को भेजकर हमारे जीवन को पवित्र कर रहा है। By sending His Spirit, Lord is sanctifying us. परमेश्वर अपने आत्मा को भेजकर हमारे जीवन को पवित्र कर By रहा है। sending His fire anointing, Lord is sanctifying us. परमेश्वर अपना अग्नि अभिषेक भेजकर हमें पवित्र कर रहा है। As the silver and gold is purified, our Lord is doing the purification work in our life. जैसे सोने और चांदी को पवित्र शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार परमेश्वर हमें शुद्ध और पवित्र करता है। That's why we must surrender our life to the hands of the Lord. इसीलिए हमें अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में समर्पित करना चाहिए। Dear child of God, in this morning, make a decision to surrender your life to the hands of the Lord. परमेश्वर के प्रिय बच्चों, आज सुबह के समय आप अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में समर्पित करने के लिए फैसला करें। Until that work of creation takes place, Lord will not leave us. और सृष्टि का कार्य आरंभ होगा, परमेश्वर हमें नहीं छोड़ेगा। Until that molding work is finished in our life, our Lord will not leave us. जब तक हमारे जीवन में वो ढालने का काम पूरा नहीं होगा, परमेश्वर हमें नहीं छोड़ेगा। He will break us, and He will do that work of sanctification in our life. वो हमें निरंतर तोड़ता रहेगा और हमारे जीवन में पवित्रताई का कार्य करता रहेगा। In the life of Joseph, we see about that. हम यूसुफ के जीवन में देख करके ये प्रकाशन प्राप्त कर सकते हैं। Till that word get fulfilled, he must be purified by the Lord. जब तक वो वचन उसके जीवन में पूरा नहीं हुआ, परमेश्वर उसे अपने वचन से शुद्ध करता रहा। In the life of Job also, we see Lord put him in asunder. अय्यूब के जीवन में भी देखते हैं कि परमेश्वर ने अय्यूब को टुकड़े टुकड़े कर दिया। The book of Job 16 chapter, we read about that. अय्यूब की पुस्तक 16 अध्याय में हम ये पढ़ते हैं। टुकड़ा टुकड़ा करेगा फिर जोड़ देगा। वो टुकड़ा टुकड़ा करेगा फिर जोड़ देगा। कोई लोग सोचेगा यो मुझे टुकड़ा टुकड़ा करके फेंक दे, नो फेंकेगा नहीं, उसको जोड़ देगा, अच्छा रूप देगा। कुछ लोग सोचते हैं कि भाई वो मुझे टुकड़े टुकड़े करके फेंक देगा, नहीं वो फेंक नहीं देगा, वो जोड़कर उसे एक अच्छा आकार देगा। He knows to break and he knows to make. वो तोड़ना भी जानता है, बनाना भी जानता है। He knows to create. वो सृष्टि करना भी जानता है। He knows to mold. वो ढालना भी जानता है। He knows to restore us. वो हमें वापस बहाल करना भी जानता है। God, don't worry about your life. परमेश्वर के प्रिय बच्चों, आप अपने जीवन की चिंता मत He करें। can able to create you. वो आपको सृष्टि करने के योग्य है। Till you become Zion and Jerusalem, He will not leave you. जब तक आप सिय्योन और यरूशलेम नहीं बन जाते, वो आपको नहीं छोड़ेगा। Till you become the glorious bride, He will not leave you. जब तक आप महिमा में दुल्हन नहीं बन जाते, वो आपको नहीं छोड़ेगा। Till you become the overcomer, He will not leave you. जब तक आप जयवंत नहीं बन जाते, वो तब तक आपको नहीं छोड़ेगा। Till you become the more than the conqueror, He will not leave you. जब तक आप जयवंत से बढ़कर नहीं बन जाते, वो आपको नहीं छोड़ेगा। You simply as a clay in the potter hand, you surrender to the hands of the Lord. साधारण रूप से आप अपने आप को मिट्टी के समान कुम्हार के हाथ में समर्पित करें। Even today, that hand is waiting for you. यहाँ तक कि आज भी वो हाथ आपकी इंतजार कर रहा है। He want to do that work of creation in your life. वो आपके जीवन में सृष्टि का कार्य करना चाहता He है। want to do that continue that work in your life. वो आपके जीवन में निष्कर्ष का कार्य करना चाहता If है। you surrender, He will do it work fully in your life. अगर आप समर्पित करेंगे तो वो आपके जीवन में ये संपूर्ण कार्य करेगा। Until and unless we surrender to the Lord, that work will not take place in your life. जब तक हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित नहीं करते, वो काम हमारे जीवन में नहीं होगा। Dear brother, dear sister, surrender to the hands of the Lord. और प्रिय भाई और बहनों, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें। He knows to create you. वो आपको सृष्टि करना जानता है। He knows to mold you. वो आपको ढालना जानता है। He knows to transform you. वो आपको परिवर्तित करना जानता He है। knows to change you. वो आपको परिवर्तित करना जानता If है। you surrender to the hands of the Lord, He will do that great work in your life. अगर आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करेंगे तो वो आपके जीवन में महान कार्य करेगा। Next, that hand wants to lead our life. और अगला है कि वो हाथ हमारे जीवन को चलाना चाहता है। Salvation we get from the hand of the Lord. उद्धार हम परमेश्वर के हाथ से प्राप्त करते हैं। Healing we get from the hand of the Lord. चंगाई हम परमेश्वर के हाथ से प्राप्त करते हैं। Comfort and rest we get from the hand of the Lord. दिलासा और विश्राम हम परमेश्वर के हाथ से प्राप्त करते हैं। That hand is creating hand. और वो हाथ सृष्टि करता हाथ है। Next, that hand wants to lead us. और आगे वो हाथ हमें चलाना चाहता है। 139 Psalms verse 9 and 10. 139 भजन संहिता 9 और 10 वचन। If I take the wings of the morning and dwell in the uttermost parts of the sea, even there shall thy hand lead me, and thy right hand shall hold me. यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं,
तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। By thy hand thy will lead me. तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा। So in the life of David, we see wherever he went, he led by the hand of the Lord. हम दाऊद के जीवन में देखते हैं कि वो जहाँ कहीं भी गया वो परमेश्वर के हाथ के द्वारा अगुवाई किया गया। We all know he was following the sheep. हम जानते हैं कि वो सब भेड़ों के पीछे चलने वाला था। He was an ordinary shepherd boy. वो एक साधारण चरवाहा लड़का था। He was not a notable person. वो एक कोई ऐसा आदरमान प्राप्त किया हुआ व्यक्ति नहीं था। But Lord chosen him. लेकिन परमेश्वर ने उसे चुन लिया। But Lord called him. और परमेश्वर ने उसे बुलाया। Lord separated him. परमेश्वर ने उसे अलग किया। Lord anointed him to inherit the throne. परमेश्वर ने उसे सिंहासन के लिए अभिषेक किया। But immediately he did not get the throne in his life. लेकिन तुरंत वो अपने जीवन में सिंहासन प्राप्त नहीं कर सका। But the unseen hand led this David in so many paths. लेकिन उस अदृश्य हाथ ने उस दाऊद को विभिन्न मार्गों में चलाया। To the wilderness, to the woods, to the jungles, and through so many places, he led by the hand of the Lord. उजाड़ से, पहाड़ों से, वादियों में और जंगल के रास्ते में विभिन्न मार्गों पर परमेश्वर के हाथ ने उसे चलाया। Sometimes running day and night. कई बार वो दिन रात भागता रहता था। He don't have place to take rest. उसके पास विश्राम करने के लिए कोई स्थान नहीं था। It was a dry and thirsty land. वो एक सूखा और मरुस्थल जगह थी। But even then, the hand of the Lord was leading this David. तब भी परमेश्वर का हाथ इस दाऊद की अगुवाई कर रहा था। 63 Psalm. First verse we see about that. 63 भजन संहिता उसके पहले वचन में हम ये देखते हैं। हे परमेश्वर, तू मेरा ईश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अभिलाषी है। O God, thou God, early will I seek thee. My soul thirsteth for thee. My flesh longs in a dry and thirsty land where no water is. Dry and thirsty land, Lord led this David. परमेश्वर ने इस दाऊद को सूखी और निर्जल भूमि पर चलाया। Sometimes our life is like a dry and thirsty land. कई बार हमारा जीवन सूखी और निर्जल भूमि के समान होता है। There was no blessing. कोई भी आशीष नहीं होगी। We are praying. और हम प्रार्थना करते We are होंगे। crying. हम दुआएं देते हैं। We are striving. हम कशमकश करते हैं। We are trying our best. हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं। Our saints also praying for us. हमारे संत भी हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। Our dear and near ones also praying for us. और हमारे प्रियजन भी हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। We are giving prayer request. हम प्रार्थना के लिए निवेदन देते हैं। But we facing this dry and drought in our life. लेकिन हम अपने जीवन में इस सूखेपन और निर्जल भूमि का अनुभव प्राप्त करते हैं। We want to be blessed, but there is no blessing in our life. हम आशीष प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन हमारे जीवन में कोई भी आशीष नहीं होगी। We feel some kind of drought in our life. हम अपने जीवन में किसी प्रकार के सूखेपन का अनुभव करते हैं। Don't be worried. चिंता मत The करें। hand of the Lord is leading you. परमेश्वर का हाथ आपकी अगुवाई कर रहा है। As the King David led by the hand of the Lord. जैसे राजा दाऊद परमेश्वर के हाथ से अगुवाई किया गया, The same manner Lord is leading the children of Israelites. उसी प्रकार परमेश्वर का हाथ इस्राएली बच्चों को भी अगुवाई कर रहा था। They led to the wilderness. और वो जाड़ में उनकी अगुवाई की गई। Where? Deuteronomy chapter 8 verse 2. व्यवस्था विवरण 8 अध्याय 2 वचन। All the way which the Lord thy God led thee these 40 years in the wilderness, to humble thee and to prove thee, to know what was in thine heart, whether thou wouldest keep his commandments or no. और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा 39 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है, कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा व नहीं। Not for few months or few days. कुछ महीनों अथवा कुछ दिनों के लिए नहीं। Not for few years. कुछ वर्षों के लिए नहीं। 40 long years they were led by the Lord through the wilderness. वो 40 लंबे वर्षों तक परमेश्वर के द्वारा अगुवाई किए गए। It was a great big wilderness. ये एक बहुत बड़ा जंगल था। Dear child, they led by the hand of the Lord. परमेश्वर के प्रिय बच्चों, वो परमेश्वर के हाथ के द्वारा अगुवाई किए गए। The same manner Lord is leading us. उसी प्रकार परमेश्वर हमारी भी अगुवाई करता है। That is the testimony of King David. ये राजा दाऊद की गवाही है। Thou will lead me and receive me in thy glory. तू मेरी अगुवाई करेगा और मुझे महिमा में प्राप्त करेगा। Lord will lead us. परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा। When we surrender to the hand of the Lord, जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ के लिए समर्पित करते He हैं, will lead us. वो हमारी अगुवाई करेगा। How to go.
कैसे जाना है, where to go, कहाँ जाना है, how to live, कैसे रहना है, how to lead a good life, कैसे अच्छा जीवन व्यतीत करना how to है, lead a victorious life, कैसे जीवन व्यतीत करना how to है, become the bride of Christ, कैसे मसीह की दुल्हन बनना है, how to become an overcoming church, कैसे जीवन कलीसिया बनना है, how to become Zion and Jerusalem. कैसे सिय्योन और नया यरूशलेम बनना He है, will teach everything which is profit for us. और हमारे लिए लाभदायक प्रत्येक बात वो हमें सिखाएगा। Isaiah 48, 17th verse, we read about that. हम यशायाह की पुस्तक 48 अध्याय 17 वचन में हम ये पढ़ते हैं, Thus saith the Lord, thy Redeemer, the Holy One of Israel, I am the Lord thy God, which teacheth thee to profit, which leadeth thee by the way that thou shouldest go. Only Lord can teach the profit things in our life. परमेश्वर हमारे जीवन में केवल लाभदायक बातों को सिखा सकता है। You will go to your friend, आप अपने दोस्त के पास you will जाएंगे, go to your relatives, आप अपने रिश्तेदारों के पास you जाएंगे, will go to the worldly people. आप संसारिक लोगों के पास जाएंगे, They will also teach the good things. वो भी आपको अच्छी बातें सिखाएंगे, But that is not profit for us. लेकिन वो हमारे लिए लाभदायक नहीं That होंगे, is a great loss for us. वो हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा, That is a great loss in eternity. वो नित्यता में बहुत बड़ा नुकसान होगा। But the things which Lord teaches, leaders, it is profit in our life. लेकिन जो बातें परमेश्वर हमें सिखाता है, हमारी अगुवाई करता है, वो हमारे लाभ के लिए होंगी। In Psalms 32 verse 8 we read about that. भजन संहिता 32 उसके 8वें वचन में हम ये पढ़ते He हैं, will keep his eye and instruct us. वह अपनी आंख के द्वारा हमारी अगुवाई करेगा। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया So करूंगा। Lord will keep read. I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go. I will guide thee with mine eye. Leading, Lord gives instruction in our life. परमेश्वर हमारे जीवन में बुद्धि देता है और हमें मार्ग में चलाता है। And the question arises, how Lord leads us? और अभी यहाँ सवाल उत्पन्न होता है कि परमेश्वर हमें कैसे अगुवाई करता है अथवा चलाता है। In these days we see everybody want to lead others. और इन दिनों में हम देखते हैं कि सब लोग दूसरों को चलाना अथवा अगुवाई करना चाहते हैं। कैसे भी छोटा मोटा बड़ा नेता बनने के लिए कोशिश करते हैं। कैसे भी छोटा मोटा सब लोग नेता बनना चाहते हैं। उनको फॉलोअर्स हो नहीं हो, दे वांट टू बिकम ए नेता। उनके कोई अनुयायी हो या ना हो, लेकिन वो नेता बनना चाहते हैं। को चलाने के लिए कोशिश, कोई भी चलने के लिए कोशिश नहीं करती। सब लोग दूसरों को चलाने अथवा अगुवाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुद चलना नहीं चाहते। बट इन आवर पाथ वी आर लेड बाय द लॉर्ड। लेकिन हमें अपने बारे में हम परमेश्वर के द्वारा अगुवाई किए जाने चाहिए। डोंट ट्राई टू लीड अदर्स। दूसरों की अगुवाई करने की कोशिश मत करें। थोड़ा थोड़ा बुद्धि रख के हम किसी को लीड करके उनको बड़ा गड्ढा में डाल देंगे। हम थोड़ा सा ज्ञान रखते होंगे, दूसरों को चलाकर उन्हें बहुत बड़े गड्ढे में डाल देंगे। Our Lord will lead us till the end. लेकिन हमारा परमेश्वर हमें अंत तक चलाएगा। How Lord is leading us? हमारा परमेश्वर हमें कैसे चलाता है? To the saints, Lord is leading us. परमेश्वर संतों के द्वारा हमारी अगुवाई करता To the है। apostles and prophets, Lord is leading us. प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा वो हमारी अगुवाई करता है। To the New Testament ministry, Lord is leading us. नए नियम की सेवा के द्वारा परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। In the life of Israelites, we see इस्राएलियों के जीवन में हम देखते हैं Lord led them to the cloud of pillar of cloud and pillar of fire. परमेश्वर ने उन्हें बादल के और आग के खंभे के द्वारा उनकी अगुवाई की। In the night and day, Lord led them in the wilderness. और दिन रात परमेश्वर ने उजाड़ में उनकी अगुवाई की। In the night also, they led by the Lord. और रात को भी वो परमेश्वर के द्वारा अगुवाई किए गए। In the day also, Lord led them. और दिन में भी परमेश्वर ने उनको चलाया। In the same manner, our life may be night or day, Lord can able to lead us. इसी प्रकार दिन रात परमेश्वर हमारे जीवन में हमें चला सकता है। We surrender to the Lord. Lord is sending His word, His truth, His doctrine. He is leading us. और अगर हम अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित करेंगे तो परमेश्वर अपने वचन को, सच्चाई को, उपदेश को भेजकर हमें चलाएगा। Next, by the ark of the testimony, Lord led the people of Israelites. और आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने वाचा के संदूक के द्वारा इस्राएली बच्चों की अगुवाई की। Wherever the ark of the testimony went, simply these people blindly they follow the ark of the testimony. और जहाँ कहीं भी ये वाचा का संदूक जाता था, ये लोग अंधाधुंध उसके पीछे चलते थे। कौन जाता है, किधर जाता, पूछना नहीं, उसको पीछे पीछे जाओ। क्यों जाता, किधर जाता, क्यों, ये सवाल नहीं करना, बस उसके पीछे पीछे चलो। आज से जी वही तो मुश्किल है, किसके पीछे पीछे जाओ बोलते रहते। आज भी तो यही मुश्किल है, उसके पीछे पीछे जाने के लिए कहते रहते हैं। पेंतिकोस्त वाले हमेशा बोलते थे पीछे जाओ, मुझे पीछे होले बोलते रहते। पेंतिकोस्त वाले लोग कहते रहते हैं पीछे जाओ, मेरे पीछे हो लो। Simply the people wherever the ark of the testimony went, they went. और साधारण रूप से ये वाचा का संदूक जहाँ कहीं गया उसके पीछे हो लिए। अच्छा हो गया, आखिरी में आके यॉर्दान के बीच में आ गया। अरे
अच्छा हो गया, आखिर में यर्दन के बीच में आ गया, But Lord divided that Jordan. लेकिन परमेश्वर ने उस यर्दन Dear को, child of God, you may face so many troubles. परमेश्वर के प्रिय बच्चों, आप अपने जीवन में कई प्रकार की परेशानियों का सामना करते You may होंगे, face so many trials and temptations. आप कई प्रकार की परीक्षाओं और आजमाइशों का सामना करते You होंगे, may face so many shame and reproach. आप कई प्रकार की निंदा और लज्जित किए जाने का सामना करते होंगे। You follow the priest. आप याजक का अनुकरण करें, You follow the ark of your testimony. आप वाचा के संदूक का अनुकरण करें, You follow the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा का अनुकरण करें, You follow the New Testament church. आप नए नियम की कलीसिया का अनुकरण You करें, be in the fellowship of the Lord. आप प्रभु की संगत में रहें, Lord will lead you. परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा, That hand will lead you. वो हाथ आपकी अगुवाई करेगा। Even today that hand is ready to lead you. यहाँ तक कि वो हाथ आज भी आपकी अगुवाई करने के लिए That तैयार, hand is ready to lead your family. वो हाथ आपकी परिवार की अगुवाई करने के लिए That तैयार, hand is ready to lead the church. वो हाथ वो कलीसिया की अगुवाई करने के लिए तैयार You है। no need to worry about anything. आपको किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। उसको मत देखो, इसको मत देखो, उसको देखो, उसका हाथ को देखो. आप इसको उसको किसी को मत देखो, आप केवल परमेश्वर के हाथ को देखो। He says, my child, I can able to lead you. वो कहता है, मेरे बच्चे, मैं तुझे चलाने अगुवाई करने के योग्य हूँ, Till the end, I can lead you. मैं तुझे अंत तक अगुवाई कर सकता In हूँ। this morning, surrender your life to the hands of the Lord. आज सुबह के समय अपना जीवन परमेश्वर के हाथ के लिए समर्पित करें। You will instruct the profit things in your life. He will lead you. वो आपके जीवन में लाभदायक बातों के लिए आपको बुद्धि देगा, सिखाएगा और आपकी अगुवाई करेगा। Till you reach Zion in Jerusalem, He will lead you. जब तक आप सिय्योन और नए यरूशलेम में नहीं पहुंच जाते, वो आपकी अगुवाई करेगा। Till you caught up in the coming of the Lord, He will lead you. जब तक आप प्रभु के आगमन में उठाए नहीं जाते, वो आपकी अगुवाई करेगा। Till the end of your life, He is able to lead you. वो आपके जीवन के अंत तक आपकी अगुवाई करने के योग्य है। Even today, He is leading us. यहाँ तक कि वो आज भी हमारी अगुवाई कर रहा Even है। after this convention also, He will lead us. यहाँ तक कि इस सम्मेलन के पश्चात भी वो हमारी अगुवाई करेगा। That hand is able to lead us. वो हाथ हमारी अगुवाई करने के योग्य है। It will not faint. ये कभी भी हमें छोड़ नहीं देगा, It will not faint. ये कभी भी तज नहीं देगा, थकता नहीं. थकता नहीं, It will not fail. ये थकता नहीं, छोड़ता नहीं. मूर्छित नहीं हो जाता It can है। be able to lead us until the end. वो हमें अंत तक चलाने के योग्य Let है। us surrender our life to the hands of the Lord. आइए हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें, Next, that hand is able to preserve us. और आगे वो हाथ हमें संभालने, सुरक्षा करने के लिए योग्य है। Chapter 49, यशाया की पुस्तक 49 अध्याय 15 and 16. 15 और 16 वचन। क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पियावे बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वे तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है, तेरी शर्पणा सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। Can a woman forget a sucking child, that she should not have compassion on the son of her womb? They may forget, yet will I not forget thee. Behold, I have graven thee upon the palms of my hands. Thy walls are continually before me. Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। So we see, we are carved in the palms of the hand of the Lord. और यहाँ हम देखते हैं कि हम परमेश्वर के हाथ में खोदे गए हैं। He will preserve us. वो हमें संभालेगा। The child of salvation comes from the hands of the Lord. परमेश्वर के प्रिय बच्चों, उद्धार परमेश्वर के हाथ से आता है। We receive the healing. हमने चंगाई प्राप्त की, We receive that rest and peace. हमने शांति और विश्राम प्राप्त किया। That hand is leading us. वो हाथ हमें चलाता है, That hand is able to keep us. और वो हाथ हमें सुरक्षित रखने के Some योग्य है। people, they are worrying about the future. और कुछ लोग अपने भविष्य के बारे में चिंतित हैं, Seeing others, they are worrying about themselves. और वो दूसरों को देखकर अपने आप के बारे में चिंतित हैं। वो गिर गया, ये गिर गया, हम कैसे रहेगा? Don't think about that. ये गिर गया, वो गिर गया, हम कैसे रहेंगे, इसके बारे में मत सोचें। गाड़ी चलाने के समय एक्सीडेंट होगा, कुछ होगा, कोई चलते नहीं है क्या? गाड़ी चलाने के समय दुर्घटना होगी, कुछ न कुछ होता रहेगा, तो क्या लोग चलना बंद कर देते हैं? नहीं, मैं गाड़ी में नहीं चढ़ेगा, नहीं ऐसे पैदल जाएगा, कोई बुद्धू बोलेगा, कोई कहेगा कि अभी मैं गाड़ी में नहीं चढ़ूंगा, पैदल चलकर जाऊंगा। Whatever it happened, Lord is able to preserve us. कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर हमें संभालने के योग्य है। He carved us in the palms of the hand. उसने हमें अपने हाथ की हथेलियों पर खोदा है। When we receive the Holy Spirit, जब हम पवित्र आत्मा प्राप्त करते हैं, when the anointing comes in our life, जब अभिषेक हमारे जीवन में आता है, when we surrender to
to the life to the Lord, जब हम अपना जीवन परमेश्वर के लिए समर्पित करते when हैं, we put our trust in the Lord, जब हम अपना भरोसा परमेश्वर पर रखते हैं, when we believe in the Lord, जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, because of image in His hands. वो अपने हाथों में हमारा आकार खोद लेता है। Nowadays, it's a fashion of tattoos. यार इन दिनों में टैटूइंग का फैशन है, Especially the young people we see, wherever they are putting the tattoos. और जवान लोगों को देखिए वो हर एक जगह पर टैटूइंग करवा कर रखते हैं। क्या जरूरत वो सब टैटू करके रखते थे। और जो कुछ भी जरूरत है वो सब कुछ टैटूइंग करवा कर रखते हैं। देखने के लिए, दिखाने के लिए कपड़ा भी उठा कुटा कैसे करते हैं, दूसरों को दिखाने के लिए कपड़े भी उठा के रखते हैं, इसलिए छोटा छोटा कपड़ा भी पहन के आते हैं। इसलिए छोटे छोटे कपड़े पहन कर आते The हैं। child of God, our Lord loved us परमेश्वर के प्रिय बच्चों, हमारे परमेश्वर ने हमें प्रेम किया। because of His great love. उसके महान प्रेम की वजह से He carved us in His palms of His hand, उसने हमें अपने हाथ की हथेलियों पर खोदा है, not behind, पीछे नहीं, not in the head, सिर पे नहीं, in the palms of these hands. अपने हाथ की हथेली में। That means every time He wants to see us, इसका मतलब प्रत्येक समय वो हमें देखते रहना चाहता in है। His hands we are safe. हम उसके हाथ में सुरक्षित हैं, Nothing can pluck it away. कोई भी हमें उसके हाथ से छीन नहीं सकता, Nobody can destroy. कोई भी हमें नाश नहीं कर No सकता। evil can happen in our life. हमारे जीवन में कोई बुराई नहीं आ They सकती। are safe and security in the hand of the Lord. परमेश्वर के प्रिय बच्चों, परमेश्वर के हाथ में सुरक्षा है। There is a great security in the hands of the Lord. परमेश्वर के हाथ में बहुत बड़ी सुरक्षा है। In the John the Gospel 18th chapter we read, हम 17th chapter, हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय में पढ़ते हैं। Lord Jesus says like this, प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार कहते हैं, the things which are given in my hands, I preserve them. जो बातें मेरे हाथ में दी गई थी मैंने उन्हें संभाला। One day evil He destroyed, son of a. विनाश के पुत्र के अलावा। So we are in the hands of the Lord. इसलिए हम परमेश्वर के हाथ में हैं। 12 जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की, मैंने उनकी चौकसी की और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नाश न हुआ, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो। Now, dear child of God, we are safe in the hands of the Lord. परमेश्वर के प्रिय बच्चों, हम परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित हैं। As a sheep safe in the hands of the shepherd, we are safe. जैसे भेड़ चरवाहे के हाथ में सुरक्षित है, उसी प्रकार हम उसके हाथ में सुरक्षित हैं। Until and unless we come to the hand of the Lord, He cannot keep us. जब तक हम परमेश्वर के हाथ में नहीं आते, वो हमारी सुरक्षा नहीं कर सकता। That's why we have to surrender our life totally to the hand of the Lord. इसीलिए हमें पूरी तरह से अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में समर्पित करना होगा। Not going and coming, the life of the Christians. और केवल मसीही लोगों के जीवन में आने जाने में नहीं। आना जाना नहीं। Some people they will come to the convention, they go from the convention. और कुछ लोग सम्मेलन में आएंगे और सम्मेलन से जाएंगे। Simply they will flying visit they will do for the meetings and services. और वो साधारण रूप से जैसे उड़ान भर के बस मीटिंग के लिए आएंगे और चले जाएंगे। The thing which is carved, it will be there. और जो कुछ खोदा गया है वो उसी के हाथ में रहेगा। The thing which is printed, it will be there. We cannot separate it. और जो उसके हाथ में खोदा गया उसे हम निकाल नहीं सकते, वो वही रहेगा। Nothing can separate from the love of the Lord. और कोई भी प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। It was printed, it is ever printed. क्योंकि जो छाप दिया गया है, मुद्रित कर दिया गया, वो हमेशा के लिए रहेगा। Duplicate print नहीं है। ये कोई बनावटी प्रिंट छाप नहीं है। आजकल कपड़ा लेके आते हो, बहुत अच्छा है, एक बार पानी में डो पूरा चले जाता है। आजकल कपड़ा लेकर आते हैं, कहते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन एक बार पानी में भिगो तो सब चला जाता है। दुनिया का सब धोखा ही धोखा है। दुनिया में सब धोखा ही धोखा है। Our Lord print is every time it will be there. लेकिन हमारे परमेश्वर ने जब एक बार हमें अपने हाथ में खोद दिया है तो वो सदैव काल के लिए वही रहेगा। We must abide in His love. हमें उसके प्रेम में बने रहना With चाहिए। an eternal love, our Lord loved us. हमें परमेश्वर ने अनंत प्रेम से प्रेम किया With है। an eternal purpose, our Lord called and separated us. With परमेश्वर ने अनंत योजना और मकसद के साथ हमें बुलाया an और अलग eternal किया है। plan, our Lord chosen us. परमेश्वर ने Chosen us. परमेश्वर ने हमें चुना है। Nobody can separate it. परमेश्वर हमें कोई भी हमें अलग नहीं कर The सकता। great love He is keeping in the hands of the Lord. वो परमेश्वर अपने महान प्रेम से हमें अपने हाथ में रखता है। By that hand, Lord is preserving us from falling. और उस हाथ से परमेश्वर हमें गिरने से बचाता है। Jude, last verse we read about that. और पिछले वचन में हमने इसके बारे में पढ़ा था। He is able to keep us from falling. वो हमें गिरने से संभाल सकता है। Dear child of God, in this morning, once again, let us
surrender to the hands of the Lord. परमेश्वर के प्रिय बच्चों, आइए आज सुबह के समय एक बार फिर से परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें। He knows our state. वो हमारी अवस्था को जानता है, He knows our failures. वो हमारी पराजयों को जानता है, He knows our weaknesses. वो हमारी कमजोरियों को जानता है, He knows our image. वो हमारे स्वरूप को He जानता है, knows about everything. वो हमारे बारे में सब कुछ जानता है। We surrender our life to the Lord. आइए हम अपना जीवन परमेश्वर के लिए समर्पित करें। Joyfully He will keep us. वो आनंद के साथ हमारी सुरक्षा Even करे। today He can able to keep us in His palms of His hands. यहाँ तक कि वो आज भी हमें अपने हाथ की हथेलियों में सुरक्षित रखने के So योग्य है। many times Satan wants to destroy us. बहुत बार शैतान ने हमें नाश करना चाहा, So many times the evil spirit want to destroy us. बहुत बार दुष्ट आत्माओं ने हमें नाश करना चाहा, But our Lord preserved us by His hands. लेकिन हमारे परमेश्वर ने हमें अपने हाथ से संभाला। The child of God, that unseen hands, even today ready to preserve us. परमेश्वर के प्रिय बच्चों, यहाँ तक कि आज भी वो अदृश्य हाथ हमें If we संभालने surrender के to लिए the hands योग्य। of the Lord, He will keep us till the end. अगर हम अपने आप को उसके हाथ में समर्पित करेंगे तो वो अंत तक हमारी रक्षा करेगा। Next, we receive the blessings from the hands of the Lord. और आगे हम परमेश्वर के हाथ से आशीषें प्राप्त करते हैं। 139 Psalms 5 and 6, we read about that. हम 139 भजन संहिता 5 और 6 वचन में ये पढ़ते He हैं, is besetting us from behind and front, and He is keeping His hand above. वो आगे और पीछे से हमें घेरे रखता है और अपना हाथ हमारे सिर पर रखता है। Thou hast beset me behind and before, and laid thine hand upon me. तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। So, ऊपर लिखता है, इसका मतलब meaning He is blessing us. हम अपना हाथ हमारे सिर पर रखता है, मतलब हमें आशीष करता है। Dear child of God, that hand want to bless us. परमेश्वर के प्रिय बच्चों, वो हाथ हमें आशीष करना चाहता Even है। in this convention, that hand is blessing us. यहाँ तक कि वो हाथ इस सम्मेलन में भी हमें आशीष कर रहा है। You believe in the word of God. आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास You करें, trust in the hands of the Lord. आप परमेश्वर के हाथ पर भरोसा He रखें, can be able to bless you. वो आपको आशीष करने के योग्य है। Your life is is full of sorrows and so griefs. आपके जीवन में दुख ही दुख भरे होंगे, Maybe full of failures. आपका जीवन पराजयों से भरा होगा, Maybe you lost so many things in your life. आप अपने जीवन में बहुत बातों का नुकसान उठा But चुके हैं। today, you surrender to the hands of the Lord. He will be able to bless you. लेकिन आज अपने आप को आप परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें, वो आपको आशीष करने के योग्य हैं। For that only Lord is besetting us उसी के लिए परमेश्वर हमें घेरे रखता है, from behind, from front. आगे और पीछे से। आगे जाने के लिए नहीं है, पीछे जाने के लिए नहीं है. आ, Besetting us. वो आगे और पीछे कहीं भी जाने के लिए नहीं है, हमें घेरे रखता In the है। life of David, we see about that. हम दाऊद के जीवन में ये देखते हैं, Those who are trusted, they betrayed the David. और जिन पर उसने भरोसा रखा था उन्होंने दाऊद को छोड़ दिया, Those who are loved by David, they become enemy to David. और जो लोग दाऊद से प्रेम रखते थे वो दाऊद की शत्रु बन गए। He trusted so many people, but they denied him. उसने बहुत से लोगों पर भरोसा रखा लेकिन उन्होंने उसका इनकार कर दिया। He kept faith in somebody, but they failed him. उसने बहुत से लोगों पर विश्वास रखा लेकिन उन सब ने उसे छोड़ दिया। Why it happened so? ऐसा क्यों हुआ? To receive the blessings from the Lord. प्रभु से आशीषें प्राप्त The करने के लिए। same manner it's happening in every child's life. और उसी प्रकार परमेश्वर के प्रत्येक बच्चे के जीवन में होता है। The child of God, He wants to bless us. परमेश्वर के प्रिय बच्चों, वो हमें आशीष करना चाहता है। Only bless us, we must be under the hands of the Lord. और आशीषें प्राप्त करने के लिए हमें परमेश्वर के हाथ के नीचे रहना चाहिए। 1 Peter chapter 5 verse 7, we read about that. पहला पत्रस 5:7 वचन में हम ये देखते In हैं, the due time, He will lift us. वो ठीक समय पर हमें ऊंचा उठाएगा, We must be seen under the hands of the Lord. लेकिन हम परमेश्वर के हाथ के नीचे दिखाई देने चाहिए। That's difficult to be in the hands of the Lord. वही परमेश्वर के हाथ में रहना मुश्किल है। Everybody want to be free. सब लोग स्वतंत्र अथवा आजाद रहना चाहते हैं। Even the small children you see, they want to be free. यहाँ तक कि छोटे बच्चों को देखो, वो भी आजाद रहना चाहते हैं। They don't want to be in the hands of the mother or father. वो भी अपने माता पिता के हाथ में नहीं रहना चाहते, They want to go here and there. They make everything problem. और वो इधर उधर जाकर के सब बातों में गड़बड़ करना चाहते हैं। Be in the hands of the Lord. परमेश्वर के हाथ में रहें। You may feel so many difficulties, आप कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते but in हैं, the due time, Lord will raise you. लेकिन उचित समय पर परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। वचन पढ़ेंगे, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए।
Humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time. In the due time, he will exalt us. उचित समय पर वो आपको ऊंचा उठाएगा। Till that time, we must be under the hands of the Lord. तब तक हमें परमेश्वर के हाथ के नीचे रहना चाहिए। We don't know when he will lift us. हम नहीं जानते कि वो कब हमें ऊंचा उठाएगा। Some people thinking about the promotion. और कुछ लोग पदोन्नति के बारे में सोचते हैं। No promotion. No promotion. कोई भी पदोन्नति नहीं। We will lift up to the Zion and Jerusalem. हम सिय्योन और नए यरूशलेम के लिए ऊंचे उठाए We will जाएंगे। lift up in the coming of the Lord. हम प्रभु के आगमन में ऊपर उठाए We जाएंगे। will lift up to receive the glory of the Lord. हम प्रभु की महिमा प्राप्त करने के लिए ऊपर उठाए जाएंगे। Then we have to be seen in the under the hands of the Lord. तब तक हम परमेश्वर के हाथ के नीचे दिखाई देने चाहिए। 134 Psalms 3rd verse we see. हम 134 भजन संहिता उसके 3रे वचन में देखते God हैं, will bless thee out of Zion. परमेश्वर हमें सिय्योन से आशीष देगा। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, वह सिय्योन से तुझे आशीष देवे। The Lord that made heaven and earth, bless thee out of Zion. Out of Zion, Lord is blessing us. परमेश्वर हमें सिय्योन में से आशीष देता By the है। hands of the Lord, Lord is blessing us. परमेश्वर अपने हाथ के द्वारा हमें आशीष करता Dear है। child of God, in this morning, that hand is ready to bless you. परमेश्वर के प्रिय बच्चों, आज सुबह के समय वो हाथ आपको आशीष देने के लिए Bless your तैयार है। individual life. आपके व्यक्तिगत जीवन में Bless आशीष your देने, families. आपके पारिवारिक जीवन में आशीष Bless देने, you wherever you go. आप जहाँ कहीं जाएं वहाँ आशीष देने के Bless लिए, your church. आपकी कलीसिया को आशीष देने के You will लिए be blessed and everybody will be blessed in you. आप आशीष पाएंगे और सब लोग आप में आशीष If पाएंगे। you be in the hands of the Lord, you will receive the blessings of the Lord. अगर आप परमेश्वर के हाथ में रहेंगे तो आप परमेश्वर से आशीषें प्राप्त The करेंगे, blessings Lord will give, it will last in our life. और जो आशीषें परमेश्वर हमें देगा वो सदैव हमारे जीवन में रहेंगी। The blessings which the world give, it will only for temporal time. संसार के द्वारा दी जाने वाली आशीषें तत्कालीन होंगी, It will come, it will go. ये आएंगी और But the जाएंगी। blessings the hand of the Lord gives, it will be everlasting blessing. लेकिन जो आशीषें परमेश्वर का हाथ हमें देगा वो सदैव काल तक बनी रहेंगी। You must be seen worthy to receive the blessings of the Lord. हम परमेश्वर की आशीषें प्राप्त करने के लिए योग्य दिखाई देने If you चाहिए। are worthy, then Lord will keep His hand and He will bless us. अगर हम योग्य दिखाई देंगे तो वो हमें अपने हाथ में रखकर आशीष Dear करेगा। God, in this morning He is ready to bless us. परमेश्वर के प्रिय बच्चों, आज सुबह के समय वो हमें आशीष देने के लिए तैयार है। You desire for the blessings of the Lord. अगर हम परमेश्वर के हाथ से आशीषें प्राप्त करनी You है are तो praying for the blessings of the Lord. आप प्रभु से आशीषें प्राप्त करने के लिए Yes, it प्रार्थना is करें। desired to the Lord to bless you. हाँ, ये परमेश्वर को भया कि वो आपको आशीष करे। It is the will of the Lord. You should be blessed by the Lord. ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप परमेश्वर के द्वारा आशीष पाने From चाहिए। time He is blessing you. वो सिय्योन से आपको आशीष कर रहा While है। you are going, you must be go with the blessings of the Lord. आज जाने से पहले आपको परमेश्वर की आशीषों के साथ जाना चाहिए। Through the convention, Lord is blessing each and everybody. और सारे सम्मेलन में परमेश्वर प्रत्येक व्यक्ति को आशीष कर रहा है। At last, we see the right hand of the Lord. आखिर में हम परमेश्वर के दाहिने हाथ को देखते हैं। Acts of the Apostles, chapter 1, verse 10 and 11, we read, प्रेरितों के काम पहला अध्याय 10 और 11 वचन में, when Jesus was ascended to heaven, His hands was raised. जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग आरोहण हुए तो उसके हाथ ऊपर उठाए हुए थे। What is that raised hand shows? ये उठाए हुए हाथ किस बात को दर्शाते हैं? Speaks about empty. ये खालीपन को दर्शाते If we हैं। have anything, we cannot raise our hands. अगर हमारे हाथ में कुछ होगा तो हम अपने हाथ ऊपर नहीं उठा सकते। Parcel, pattalam, parcel, if we keep that big burden, we cannot raise our hands. अगर हम अपने हाथ में बहुत बड़ा बोझ रखेंगे तो हम अपने हाथ ऊपर नहीं उठा सकते। I am not belongs to this world. मैं इस संसार का नहीं हूँ। There is nothing, the prince of this world is coming, there is nothing for me. इस संसार का सरदार मेरे पास आता है लेकिन मेरे पास उसका कुछ नहीं। In the same manner, he wants to empty us. और उसी प्रकार वो हमें भी शून्य करना चाहता है। Dear child of God, that empty hand speaks about that raised hand speaks about the emptiness. परमेश्वर के प्रिय बच्चों, वो उठाए हुए हाथ खालीपन को दर्शाते We हैं। should be seen free from all these worldly things. हम संसार और संसार की सब बातों से खाली अथवा मुक्त दिखाई देने We चाहिए। should be freed from the vanities of this world. हम इस संसार की व्यर्थता से मुक्त दिखाई देने We चाहिए। should be seen empty from all these things. हम इन सब बातों से मुक्त दिखाई देने चाहिए। If we collect all this, if we carry all this, we cannot raise our hands. अगर हम इन सब बातों को इकट्ठा करेंगे और इन सब बातों को उठाए रहेंगे तो हम अपने हाथ ऊपर उठा नहीं सकते। Read that verse. वो वचन पढ़ेंगे। और उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उसके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से
तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा, उसी रीति से वह फिर आएगा। Luke 24:50 also. लूका का सुसमाचार 24 अध्याय 50 वचन। 24:50. 24 अध्याय 50 वचन। तब उसने बथेनिया तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी। And he led them out as far to Bethany, and he lifted up his hands and blessed them. Lift up his hand, he blessed them. अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी। Lifting the hands shows. अपने हाथ उठाना किस बात को दर्शाता है? Speaks about hope in our life. ये हमारे जीवन में आशा के बारे में दर्शाता है। What is that hope? वो आशा क्या है? As he went, he will come. जैसे वो गया वैसे वो आएगा भी। What is that hope? वो आशा क्या है? I am going to prepare one place for you. मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ। Don't worry about anything. और किसी भी बात की चिंता मत करो। As I went, I will come back. जैसे मैं गया हूँ वैसे मैं वापस भी I आऊंगा। will prepare one place for you. मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करूंगा। That was वो वचन John the पढ़े। Gospel 14 chapter verse 2. यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय 2 वचन। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुझसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने चाहता हूँ। In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. Some people thinking raising the hands, ayyo எனக்கு ஆபத்து உதவி செய்யுங்க. Not like that. कुछ लोग मुझे बचाओ ऐसे नहीं कुछ है। लोग सोचते हैं कि हाथ ऊपर उठाने का मतलब है कि हाय मुझे बचाओ। उसको बचाने के लिए कोई जरूरत नहीं, वो सबको बचाने के लिए आया है। उसको बचाने की कोई आवश्यकता नहीं, वो खुद सबको बचाने के लिए आया। ग्रेट होप लॉर्ड हैज गिवन इन आवर लाइफ। परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत बड़ी आशा दी है। ऐसे ही व्हेन आई विल कम बैक। जैसे मैं जा रहा हूँ वैसे मैं वापस भी आई एम आऊंगा। गोइंग टू प्रिपेयर वन प्लेस फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने के लिए व्हाइल जाता हूँ। कमिंग बैक ही विल नॉट कम विद एम्प्टी हैंड। और जब वो वापस आएगा तो वो खाली हाथ वापस नहीं आएगा। He ascended, he goes with empty hand. और जैसे वो खाली हाथ ऊपर उठाया गया, जाने के वक्त ऐसे खाली हाथ से गया, बट आते वक्त ऐसे नहीं आएगा। जाने के समय तो वो खाली हाथ ऊपर गया, लेकिन आने के समय खाली हाथ नहीं आएगा। Revelation chapter 22 verse 10 and 11 we see, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 10 और 11 वचन कहता he है, will come back with all the rewards. वो सब प्रतिफल लेकर आएगा। खाली हाथ से नहीं आएगा। वो खाली हाथ से नहीं आएगा। We people we go to the somebody's house will खाली हाथ। अगर हम किसी के घर में खाली हाथ जाते हैं तो आंटी आया क्या फायदा, कुछ भी नहीं लाया। आंटी आए हैं क्या फायदा, कुछ भी लेकर नहीं आए। अरे बेटे क्या लाना है, क्या है ये, क्या प्यार है, ऐसा बोल। वो बोलेंगे बेटे क्या लेके आना है, क्या उस लेके आने में ही प्यार है। अंकल आया मिठाई भी नहीं लेके आया बोल। अंकल आए हैं कोई मिठाई भी नहीं लेकर आए। जीसस विल कम विथ नॉट ही विल कम विथ नॉट एम्प्टी हैंड। हमारा प्रभु यीशु मसीह खाली हाथ नहीं आएगा। ही विल कम विथ ऑल द रिवॉर्ड। वो सब प्रतिफल के साथ आएगा। विथ ऑल द ग्लोरी विल बी कम बैक। वो सारी महिमा के साथ वापस आएगा। ऑल द क्राउन्स विल कम बैक। वो सब मुक्तों के साथ वापस आएगा। चाइल्ड ऑफ गॉड ही विल नॉट कम बैक विथ एम्प्टी हैंड। परमेश्वर के प्रिय बच्चों वो खाली हाथ वापस नहीं आएगा। वी मस्ट गेट रेडी टू रिसीव ऑल द रिवॉर्ड फ्रॉम द लॉर्ड। हम प्रभु से सब प्रतिफल प्राप्त करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ग्रेट होप लॉर्ड हैज गिवन इन आवर लाइफ। ये परमेश्वर के द्वारा दी गई हमारे जीवन में बहुत बड़ी आशा है। इन दैट हैंड देयर इज अ ग्रेट होप। और उस हाथ में बहुत बड़ी आशा है। दैट इज अ ब्लेसेड होप। वो धन्य आशा है। दैट इज अ लाइवली होप। वो जीवित आशा है। दैट इज अ ग्रेट होप लॉर्ड हैज गिवन इन आवर लाइफ। वो बहुत बड़ी आशा है जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दी। दैट इज अ ग्लोरियस होप लॉर्ड हैज गिवन in our life. वो परमेश्वर ने हमारे में जीवन में महिमा में आशा दी। This morning let's close your eyes. आइए आज सुबह के समय अपनी आंखों को बंद करें। Once again let us surrender to the hands of the Lord. आइए एक बार फिर अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। That hand wants to do great things in our life. वो हाथ हमारे जीवन में महान कार्य करना चाहता If we है। surrender life to the Lord, that hand will do great things in our life. अगर हम अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित करेंगे तो वो हाथ हमारे जीवन में महान कार्य You करेगा। will not go back as you come. आप जैसे आए हैं वैसे वापस नहीं With a जाएंगे। great blessing you will go back. आप बहुत बड़ी आशीषों के साथ वापस With a जाएंगे। great joy you will go back. आप बहुत बड़े आनंद के साथ With a वापस great rest you will go आप back. बहुत बड़े विश्राम के साथ With a वापस great comfort you will go back. बहुत बड़े दिलासा के साथ With a वापस great जाएंगे। deliverance you will go आप back. बहुत बड़े छुटकारे के With साथ a वापस great hope you will go आप back. बहुत बड़ी आशा के साथ That hand वापस is ready to do great things in your life. वो हाथ आपके जीवन में महान कार्य करने It के लिए wants to तैयार है। create in you. क्योंकि वो आपको सृष्टि करता It है। wants to mold your life. क्योंकि उसने आपको जीवन को ढाल दिया है। It wants to lead
your life. वो आपके जीवन की अगुवाई करना That चाहता है। hand want to keep you. वो हाथ आपको सुरक्षित रखना That चाहता want है। to bless you from Zion. वो हाथ सिय्योन से आपको आशीष करना चाहता है। That hand is ready to prepare you for Zion and Jerusalem. वो हाथ आपको सिय्योन और नए यरूशलेम के लिए तैयार करना चाहता है। Today, let us surrender life to the hands of the Lord. आइए एक बार फिर से हम अपना जीवन परमेश्वर के लिए समर्पित करें। परमेश्वर हमारी सहायता करें।